ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ لوگوں سے تو اکتا گیا ہوں، بھیڑ سے جی اٹھ گیا ہے، محفل مزہ نہیں دیتی، محفل سے جی گھبراتا ہے، مگر تنہائی میں بھی وہ لطف نہیں ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں۔ میں اس دوست کو کہنا چاہوں گا کہ پہلے اپنے اکیلے پن کو، اپنی تنہائی کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک اکیلا پن یہ ہے کہ آپ تنہا رہ گئے، کنہیں بھی وجوہات سے لوگوں سے کٹ گئے، اپنوں سے دور ہو گئے۔ یہ تنہائی نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے موجود ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ شدت سے موجود ہیں۔ آپ گھر سے دور ہیں اور کئی دن سے دور ہیں، تو اب آپ کو گھر والے اور بھی شدت سے یاد آ رہے ہیں، دوست اور بھی شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ وہ جتنے اس وقت تمہارے ساتھ ہیں، اس وقت بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے جب تم ان کے ساتھ تھے۔ یہ تنہائی ذرا سی بھی پروڈکٹیو نہیں ہے، یہ بس فزیکلی ایک دوسرے سے ایسی دوری ہے جس میں نفسیاتی طور پر تم نے اور بھی بڑی محفل سجا لی ہے۔ اس کو کوئی ایسی تنہائی نہ سمجھ لینا کہ جس میں ہوش کا دیا جلتا ہے، جس میں شعور، کانشیسنس بیدار ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو کہ ایک شخص مرید ہونے پیر کے پاس گیا، پیر کے سامنے دو زانو ہو کر وہ بیٹھ گیا اور کہا، مرشد، سب چھوڑ کر آ گیا ہوں، مجھے سچائی کی راہ دکھائیے، میں ریالٹی جاننا چاہتا ہوں، خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ مرشد نے اسے دیکھا اور کہا کہ ان کو تو چھوڑاؤ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مرید نے پہلے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوا اور کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مرشد نے کہا، دیکھ، ایسے تمہیں یہ بھیڑ نظر نہیں آئے گی، اپنی آنکھیں بند کر اور پھر دیکھو۔ مرید نے مرشد کا حکم مانا اور آنکھیں بند کر لی۔ تب اسے مرشد کی بات سمجھ آئی، وہ سب ہی تو وہاں تھے، وہ سب اس کے ساتھ ہی تھے، وہ بیوی، وہ بچے، وہ ماں باپ، وہ یار دوست، وہ سب وہیں موجود تھے جنہیں وہ چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ تو ایک تو ہوتا ہے اکیلا پن، وہ اکیلا پن کے جس میں بھیڑ نظر نہیں آتی مگر ہوتی ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جس میں دوسرا فزیکلی موجود نہیں ہے مگر نفسیاتی طور پر وہ موجود ہی نہیں ہے، دماغ پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ وہ اکیلا پن ہے کہ دیکھنے میں تم اکیلے ہو مگر اندر نہیں، اندر تو وہی بھیڑ موجود ہے، وہی خواہش جوان ہے کہ یہ سارے میرے موجود ہوں۔ کوئی باہر سے تمہارے پاس آئے گا تو دیکھے گا کہ ہاں تم اکیلے بیٹھے ہو، مگر تم اندر سے جانتے ہو کہ تم اکیلے نہیں بیٹھے ہو، یادوں میں پوری کی پوری محفل سجی ہے۔ یہ اکیلا پن وہ نہیں کہ جس پر تم راضی ہو جاؤ، یہ مجبوری کی تنہائی ہے۔ یہ اکیلا پن کوئی شانتی، کوئی پیس، کوئی سٹلنس پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس سے تو تمہارے من کی جھیل میں اور بھی بڑی بڑی لہریں پیدا ہو رہی ہیں، انا اور بھی طاقت پکڑ رہی ہے، دوسرے کا احساس اور بھی شدت سے ہو رہا ہے۔ ایسی تنہائی کبھی کام نہیں آتی، یہ خود اختیار کردہ نہیں ہے، یہ تھوپی ہوئی تنہائی ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جب بھی ایسے تم اکیلے ہوتے ہو تو اس کے ہزاروں حل ڈھونڈتے ہو۔ کبھی اخبار اٹھا لیتے ہو، کبھی ٹی وی چلا لیتے ہو، کبھی فون پر کسی سے بات کرنے لگتے ہو، کسی دوست کو بلا لیتے ہو یا اس کے پاس چلے جاتے ہو، فلم دیکھ آتے ہو، پارک نکل جاتے ہو، مطلب کسی بھی طرح اس سے بھاگتے ہو۔ یہ تمہاری چوائس نہیں ہے، یہ تمہارے ایک خاص طرز کی زندگی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنوں سے کہیں دور ہو۔ یہ تنہائی، یہ اکیلا پن بے سود ہے، یہ بے رس ہے، اس میں کچھ لذت ہے نہ کچھ صلہ۔ یہ میڈیٹیٹیو تنہائی نہیں ہے، یہ چنی ہوئی تنہائی نہیں ہے، یہ مذہبی مراقبہ نہیں ہے، یہ زنداں کی قید کی تنہائی ہے۔ دوسرا اکیلا پن وہ ہوتا ہے جس میں رس ہے، جس میں تمہیں مزہ آنے لگتا ہے۔ تنہا
बैठने में खुशी महसूस होने लगती है। ये अकेलापन अब उदासी नहीं है, ये एक नगमा है। इसमें दूसरे की याद भी नहीं आ रही, बस अपने होने का लुत्फ आ रहा है, अपनी बीइंग का मजा आ रहा है। इस अकेलेपन से, इस तन्हाई से भागने की भी कोई ख्वाहिश तुम में नहीं उठती। इस तन्हाई में किसी की दखल अंदाजी मजा तो क्या, उल्टा बुरी लगने लगती है। इस तन्हाई में, इस अकेलेपन में बड़ा सुकून है, सुकूत है, खामोशी है। तुम्हारे मन की झील स्टिल हो गई है, ख्यालात की लहरें थम गई है। पहली तन्हाई वो है जिसमें तुम खुद से नहीं जुड़ पाते हो, दूसरी तन्हाई में तुम खुद से जुड़ जाते हो। ये मेडिटेटिव हालत है, सूफियाना मराकबे की हालत। तन्हाई की एक तीसरी भी हालत होती है जो पहुंचे हुए सूफियों की हालत है। ये तन्हाई बड़ी दिलचस्प है। इसमें फिजिकल सतह पर या मेंटल सतह पर दूसरों के होने ना होने का सवाल ही नहीं बच जाता। पहली तन्हाई में आप खुद तो नहीं होते, दूसरा होता है। महबूब या महबूबा याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, बचपन याद आ रहा है, कोई मर गया है वो याद आ रहा है। इस पहली तन्हाई में आप कहीं भी नहीं होते, बस दूसरा ही दूसरा होता है। दूसरी किस्म की तन्हाई में दूसरा गायब हो जाता है, उसमें आप ही आप रह जाते हैं। अपना होना, अपनी सांस की आवाज, अपने दिल की धड़कन, अपनी बीइंग। इस दूसरी किस्म की तन्हाई में दूसरा है ही नहीं, बस तुम ही तुम हो। जो तीसरी तन्हाई होती है वो एक बड़ी अजीम सूफियाना हालत है। इसमें दूसरा भी नहीं बच जाता और तुम भी नहीं रह जाते। इसमें दूसरे का तसव्वुर भी फना हो जाता है। मैं नहीं सब तू मनौतों से मावरा। ये तन्हाई की वो हालत है कि जिसमें इर्द गिर्द हजारों लोग भी बैठे हों तो तन्हाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार या जंगल इस तन्हाई को बढ़ाता या घटाता नहीं। ये अल्टीमेट रियलिटी में जुम हो जाने की हालत है। ये हकीकी तन्हाई है। इस बात को समझें कि मैं मौजूद है या तू मौजूद है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। या इसको यूं देखें कि पहली किस्म की तन्हाई में तुम्हारे पास सिक्के का वो रुख है जिसमें दूसरा सामने है, मैं है ही नहीं। दूसरी तन्हाई में सिक्के का वो रुख तुम्हारे पास है जिसमें मैं है, दूसरा नहीं है, यह छुपा हुआ है। तीसरी तन्हाई वो है जिसमें सिक्का ही खो गया, मैं और तू की तकसीम ही नहीं है। ये फकीर की हालत है, ये हकीकी सूफी की हालत है। इसमें न मैं बाकी है न तू, बस एक शऊर बच गया, प्योर कॉन्शियसनेस, एक आगही। ये हालत वहदत है, जिंदगी से वननेस, कुल बीइंग से वननेस। ये वो हालत है कि जब कतरा समंदर में मिल गया, अब कतरा किसे कहे कि ये दूसरे कतरे हैं और कैसे तय करे कि ये मैं हूं। वो मैं और तू की तकसीम ही मिट गई। इस तन्हाई में भीड़ ही नहीं खो गई, तुम भी खो गए। क्योंकि गौर करो, तुम भी भीड़ ही के हिस्से थे। तन्हाई की पहली हालत में बेचैनी होती है, दूसरी हालत में सुकून होता है और इस तीसरी हालत में एक मुकम्मल सुकूत होता है, स्टिलनेस। झील की सतह लहरों से पाक हो गई, झील स्टिल होकर आईना बन गई। ये ऐसी तन्हाई है कि जो सारी भीड़ को निगल गई, हर दूसरे को जिसने मिटा दिया, और दूसरा ही नहीं, मैं भी मिट गया। वहदतुल वजूद की हालत। ये तीन हालतें होती हैं तन्हाई की। अगर तुम्हारा भीड़ में दिल लगता है, तुम्हें अपने एहसास के लिए हर वक्त भीड़ चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई साथ चाहिए, ये पागलपन है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि खुद के साथ तुम नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हारा भीड़ में दिल नहीं लगता तो ये एक कदम है रियलिटी की तरफ। ये अच्छी अलामत है। अब अगर तन्हाई में लज्जत नहीं है तो ये भी नेचुरल है।
क्योंकि नस्लों से भीड़ से खुद को तुम आइडेंटिफाई करते आए हो। अकेले होगे तो ये अकेलापन शुरू में खटकेगा, कुछ अजनबी अजनबी सी फीलिंग होगी। अब ये तो बात समझ आ गई कि भीड़ मेरे होने को तय नहीं करती, लेकिन वो दूसरों के साथ खुद को शनाख्त करने की जो सदियों की आदत है वो कायम है। ये आदत इतनी आसानी से तो नहीं जाती कि सदियों की आदत है, रुएं रुएं में बसी हुई है। ये समझ आ जाना मुबारक है कि भीड़ बेकार है, अब खुद के साथ बैठना है। मगर खुद के साथ बैठने से जी घबराता है। क्यों? क्योंकि यही जी जो घबरा रहा है ये भीड़ ही का बनाया हुआ है। यही जी आपकी अना है, और अना को आप नहीं बनाते, मुआशरा बनाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मजहब, तुम्हारी कौमियत, ये सब तुम्हें इस भीड़ ने दिया है, इस भीड़ ने तुम्हें बताया है। तो जो ये जी घबरा रहा है ये वही भीड़ का लतीफ पहलू ही है। ये तुम्हारा भरम है कि तुम्हारी अना, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी है, नहीं, ये भीड़ की दी हुई है। ये माशरे की तश्कील करता है, ये समाज की क्रिएटेड है। तुम अपनी अना के मालिक खुद को समझने की भूल ना करना। अना की मालिक सोसाइटी है, क्योंकि मालिक तो वही होता है जो बनाता है। तुम्हारी अना तो इसी सोसाइटी की बनाई हुई है, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। तुम्हारी मिल्कियत तो वो है जो इस अना से मावरा है, जिसने इस अना को कबूल किया है। याद रखना, भीड़ से निकलना हो और हकीकी तन्हाई को छूना हो तो सूफी कहते हैं कि अना को छोड़ कर आना, मैं को मिटा कर आना। कभी तुमने गौर किया मैं की सूफी फकीर इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? इसलिए कि मैं होगी, अना होगी तो तुम होगे ही नहीं। तो अगर तन्हाई से जी घबराता है तो इस बात को समझो कि जी घबराएगा ही, क्योंकि जी है ही भीड़ का। तन्हाई में लज्जत का सफर शुरू होता है वहां से जब तुम ये जी भी छोड़ देते हो जो घबरा रहा है। इसलिए तो जितनी भी मेडिटेशंस हैं, सूफियों के मराकबे हैं, मज़ाहिब की इबादतें हैं, उनका एक ही मकसद होता है, मैं से निजात, नो माइंड की हालत। वो तन्हाई जो तुम्हें तुमसे मिला दे, वो तन्हाई जो तुम्हारी दुई को ख़त्म कर दे, जो मैं और तू का फ़र्क मिटा दे, वो सिर्फ भीड़ से भागने से नहीं मिलती, वो तो उस मैं से भी निजात के बाद मिलती है जिसे इसी भीड़ ने बनाया है।